Rubalco is a group which manufactures furniture and is currently preparing its financial statements for the year ended 31st December. Let's suppose this is 2017. The following exhibits available on the left-hand side of the screen provide information relevant to the question. One is a consignment arrangement which describes the sale and dispatch of garden furniture to garden centers and its inclusion in the financial statements. That means क्या किया है? This company is making manufacturing. This company is making furniture. It is into manufacturing of furniture. इन्होंने गार्डन फर्नीचर गार्डन सेंटर्स को डिस्पैच किया है अंडर अ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब इनको इंक्लूड करना है. आगे प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है, हिस्टोरिक एक्सचेंज रेट है, मैं इनके ऊपर नहीं जाऊंगी. This information should be used to answer the question requirements within the response option provided. That means I need to go to the requirement. Which requirement are we going to see related to consignment? A. Explain in accordance with IFRS 15 revenue from contracts with customers how the consignment arrangement should be dealt with in the financial statements of Rubalco and explain why the proposed treatment of revenue is not in accordance with IFRS 15. That is the requirement I would like to take up related to consignment part. The first thing which I'll do is I'll copy the requirement so that I am not opening up this window again and again. सबसे पहला काम मेरा हमेशा यही होगा, आई विल ओपन द वर्ड प्रोसेसर और इसमें इस रिक्वायरमेंट को पूरा हम पेस्ट कर लेंगे. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव बीन डूइंग इन माय एसीसी एग्जाम्स. क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बहुत लंबी होती हैं, पूरे चांसेस होते हैं कि विंडो हॉप करने के चक्कर में आपका कोई ना कोई रिक्वायरमेंट छूट ना जाए. सो डोंट लेट दैट हैपन. वी नीड टू क्लियरली सी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन फ्रंट ऑफ यू. द नेक्स्ट स्टेप is opening up the exhibit which relates to the requirement. Yeah, exhibit, not too much of information. Rubalco provides garden centers with furniture on a consignment basis. I also do this. Copy this part, close the exhibit, take this exhibit's information on the word processor. This is also what I have been doing in my papers of ACCA. So ये try करना, इससे थोड़ा सा task easy हो जाता है. बार बार आप विंडोज में हॉपन नहीं करोगे और एग्जाम में भी इट गेट्स कॉपीड. स्टार्ट करूं? एवरीबडी रेडी विद दिस? यहां तक सबने कर लिया मेरे साथ साथ? यस मैम. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. Rubalco provides garden centers with furniture on a consignment basis. Rubalco retains legal right to the furniture until they are sold by the garden center to a customer. The products are immediately available for sale on delivery to the garden centers. The garden center does not have any obligation to pay Rubalco until a sale to a customer occurs. तो हमने जो consignment वाला part discuss किया था उसमें you remember I had told it depends upon the arrangement between the consignor and the consignee. अगर इनका internal arrangement ये होगा कि जैसे ही सामान इस फर्नीचर वाले रिटेलर के पास आ जाएगा ही विल हैव टू पे टू Rubalco. यहां पे इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि इस तरीके का इनका अरेंजमेंट नहीं है. यहां इनका अरेंजमेंट सिंपल ये है कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. गार्डन सेंटर विल नॉट पे एनीथिंग टू Rubalco until the सामान is sold to the ultimate customer. So that they have clarified here. आगे बढ़ते हैं. Physical possession remains with the garden center until the furniture is sold or returned to Rubalco. That means Rubalco को ये return भी हो सकता है. Rubalco also retains the right to have any unsold furniture returned to them or to transfer the unsold products to another retailer. You remember we saw this condition as one of the main conditions of consignment. कि कंसाइनर के पास ही राइट होता है दैट ही कैन आस्क द ट्रांसफर ऑफ सामान बैक टू हिम और टू समवन एल्स. यू रिमेंबर दिस वाज वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशंस ऑफ द कंसाइनमेंट अरेंजमेंट. यस, नो? यस मैम. ठीक है. Once the garden center has sold the furniture, Rubalco has no further obligations. यानी जैसे ही गार्डन सेंटर से फर्नीचर बिक जाएगा Rubalco का
आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी क्यों बता रहे हैं ये? व्हाई इज दिस सेंटेंस रेलेवेंट फॉर मी? जस्ट ट्राइंग टू कंफ्यूज मी, राइट? है ना? रूबल को इज द कंसाइनर। जैसे ही फर्नीचर बिक जाएगा उसके बाद इनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है फर्नीचर बिकने के बाद में टुवर्ड्स द अल्टीमेट कंज्यूमर। क्यों बता रहे हैं मुझे यार ये? because there's पास they वो will कंट्रोल दिखा रहे हैं। पासिस ऑफ पासिंग कंट्रोल। या When is it passing control? Control is passing at what time? when the customer receive the goods. Okay, Naveen, you wanted to add on something? no, as we studied yesterday that on the in the consignment case, हाँ, the consignor will book the revenue only once it will be purchased or delivered to the exact buyers. perfect, perfect. So that is perfect. मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे रूबल का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये सेंटेंस मेरे लिए किस रेलेवेंस, क्या रेलेवेंस होल्ड कर रहा है? रूबल को हैज नो फर्दर ऑब्लिगेशन। some point in time Transfer परफेक्ट। यानी कि यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फैक्शन विल हैपन एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है। यू रिमेंबर, ऑब्लिगेशन अगर बाद में भी होता है इसका मतलब इट मे बी अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिमेंबर, सेलर के लिए अगर ऑब्लिगेशंस खत्म हो गए हैं इसका मतलब द मोमेंट फर्नीचर इज सोल्ड, दैट इज द पॉइंट व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। Am I clear? These sentences will tell you some items, they will just ring bells in your mind कि okay ये इसके बारे में बात करेगा। ऑब्लिगेशन का वर्ड आते ही ढूंढना कि ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। Am I clear? Note down this point कि हमें ये सेंटेंस ये रेलेवेंस दे रहा है। द मोमेंट यू सी द वर्ड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कब खत्म हो जाएगा इसका मतलब मुझे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फैक्शन का टाइम दे रहा है। इट इज एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बताना चाह रहा है। ओके, आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं? चलो। The garden centers then remit to Rubalco the sale proceeds net of their agent's commission। आ गई वही वाली बात कि सामान जब आएगा रिटेलर के पास तब वो कुछ नहीं देंगे और बाद में भी जब सामान बिक जाएगा तो कमीशन को डिडक्ट करके जो नेट अमाउंट बचेगा वो कंसाइनर को ये ट्रांसफर कर देंगे। तो ठीक है, बहुत क्लैरिफिकेशन से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया क्या अरेंजमेंट है रूबल को और इन गार्डन सेंटर्स के बीच में। Rubelco has decided to include the sales value of all furniture delivered to and held by garden centers in revenue. Don't you think this is something fishy? Rubelco ने डिसाइड कर लिया है जितनी भी सेल्स वैल्यू है फर्नीचर की वो डिलीवर करते ही, और इवन गार्डन सेंटर ने होल्ड भी कर रखी है, उसको रेवेन्यू में वो डाल देगा। What about this sentence? मन क्या बोल रहा है इसके बारे में? That they मैम are रेवेन्यू ओवरस्टेट होगा। overstating the revenue. रेवेन्यू ओवरस्टेट हो जाएगा यानी कि ये गलत है ना, तुम ये कह रहे हो ना, ये नहीं करना चाहिए ना, है ना? Yes. करेक्ट, ये नहीं करना चाहिए। नाउ लेट अस नाउ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि एग्जाम में आप इसका आंसर कैसे फ्रेम करोगे। अब मेरे साथ साथ लिखते चलना। सबसे पहले ऑलवेज गॉड, द फर्स्ट थिंग चेक फॉर द मार्क्स एलोकेशन। सबसे पहला काम मार्क्स की तरफ देखो, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? कितने मार्क्स का है? 7 marks। अब इन 7 मार्क्स के बेसिस पे रिक्वायरमेंट पे मार्क्स एलोकेट करो। एलोकेट मार्क्स टू रिक्वायरमेंट्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि हमें आंसर कितना डिटेल में देना है। मुझे जरा बताओ रिक्वायरमेंट्स कितनी है इस क्वेश्चन की? ओनली 1 2 3 4 5 6 10 12। हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन? दिस इज योर क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। 2। हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर? 2 2 requirements, right? So first requirement क्या है? क्वेश्चन से ही लिखेंगे हम, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। हाउ द कंसाइनमेंट अरेंजमेंट शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल्स, करेक्ट? यही है। यस मैम।
फाइनेंशियल्स ऑफ किसके फाइनेंशियल्स पूछे? रूबल को के। व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट? फटाफट से कॉपी करके लिखते जाना। ये जब आप स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चंस कर लोगे तो अपने आप दिमाग में ये बनने लग जाएंगे और एग्जाम में आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ही डालोगे। यानी ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट मैं आज पूरे पूरे लिख रही हूँ। जब आप इसको करने लग जाएंगे और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन ये पहली रिक्वायरमेंट, और आप ऐसे करके चालू कर देंगे, ये पहली रिक्वायरमेंट है। फिर आप चालू करेंगे, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो आपके लिए हमेशा ये कोड वर्ड की तरह बन जाएगी। टुडे आई एम राइटिंग इट इन ऑल डिटेल्स क्योंकि ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? Why the proposed treatment is not in accordance with IFRS 15. Got it? यही दो चीजें हैं। पहले तो कंसाइनमेंट अरेंजमेंट को डील कैसे करना है, दूसरा जो इन्होंने ट्रीटमेंट किया है वो क्यों IFRS 15 के हिसाब से नहीं है। दीज टू आर सेपरेट रिक्वायरमेंट्स, ये दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, हम इनको आंसर करते हुए इंटरमिक्स जरूर कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जो पूछने का इंटेंट है वो अलग है। यहाँ पे तो पूछा है कि कंसाइनमेंट अरेंजमेंट का पूरा ही ट्रीटमेंट समझा दो, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट रेवेन्यू का कर दिया गया है वो क्यों IFRS 15 के हिसाब से नहीं किया। गॉट इट? द क्वेश्चन इज डिफरेंट। सो वेर एवर यू आर राइटिंग, इसको हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ये फर्स्ट वाला पार्ट पूछ रहा है कंसाइनमेंट अरेंजमेंट का ट्रीटमेंट बताओ, इसके पास में लिखो कंसाइनमेंट अरेंजमेंट का ट्रीटमेंट बताओ, दैट इज द रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट पूछ रही है रेवेन्यू का जो ट्रीटमेंट हो गया है वो IFRS 15 के हिसाब से क्यों नहीं है। जो ट्रीटमेंट रेवेन्यू का हो गया है वो IFRS 15 के हिसाब से क्यों नहीं है। यानी आपको गलतियां पकड़वानी है। जब आप सबने अभी बोला था कि ये जो इसने लास्ट लाइन में किया ये गलत है, यू हैव टू प्रूव ये गलत क्यों है। एम आई क्लियर विद द रिक्वायरमेंट्स? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू ऑल गॉट टू नो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, सेकंड रिक्वायरमेंट है। जरा मुझे बताओ 7 मार्क्स को फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे कितने मार्क्स एलोकेशन करें और सेकंड रिक्वायरमेंट पे कितने मार्क्स एलोकेशन करें। इस हिसाब से बोलना कि आप डिस्कशन कितना डिटेल में कर पाओगे। डोंट एलोकेट 3.5 3.5। Pema, I'm not able to hear you. Okay, Maybe 5 or 5 2. and 2. 5 and 2 is one idea. Another idea? Another idea? It can be 4 or 3. मेरा कहने का मतलब है हाँ 4 और 3 या 5 and 2 both are okay, depends upon how much detailed discussion you are doing. What I'm trying to say 3.5 3.5 please बिल्कुल मत करना। Neither it should be 2 marks for this and 5 marks for this, क्योंकि जब आप लिखोगे ना आंसर आपको वाकई लगेगा कि यार मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने इस पे तो डिस्कशन बहुत थोड़ा किया और इस पे डिस्कशन बहुत लंबा कर दिया। आपको पहले से ये चीज ध्यान रखनी है, डिस्कशन ऑन फर्स्ट रिक्वायरमेंट शुड बी मोर एज कंपेयर टू दी सेकंड रिक्वायरमेंट, क्योंकि सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन भी कम दी है, फर्स्ट के ऊपर ज्यादा दी है, उसके ऊपर बहुत डिटेल दी है। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? I have to write more on first requirement and less on second requirement. More and less. And if you decide 4 and 3, that is also okay. If you decide 5 and 2, that is also okay. But 6 and 1, not okay. 2 and 5, not okay. ठीक है? क्या यहां तक सारी बात क्लियर हुई? The first step is mark allocation. आंसर बिल्डिंग पे आ जाएं अब। Yes, ma'am. ठीक है, आंसर बिल्डिंग में नाउ स्पेसिफिक पॉइंट्स टू रिमेंबर इन केस ऑफ आंसर बिल्डिंग इज ऑलवेज ब्रीफ द केस बिफोर डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट और द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हमेशा इस पॉइंट को लिख लो और याद भी रखना। आप जब डिस्कशन चालू करेंगे उस डिस्कशन से पहले थोड़ी सी केस की ब्रीफिंग देना। क्यों दे रहे हैं हम, इसको समझो। इस बात को आपको एग्जामिनर को ये चीज प्रूव करनी है कि आप केस क्या है वो समझ गए हैं। दैट्स द इंटेंट बिहाइंड ब्रीफिंग द केस फैक्ट्स।
इसमें ध्यान रखना, प्लीज डू नॉट कॉपी एज इट इज फ्रॉम द केस। कॉपी नहीं करना है, यू हैव टू राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद में हम एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे इन एवरी क्वेश्चन। देन फिफ्थ, applying the facts of the case to the accounting standard, and last, the concluding statement. So this is a normal way of writing, not even answers, even your business documents, उनको भी इसी तरीके से लिखा जाता है, concluding or conclusion. Conclusion writing has to be at the end. Do not start with conclusions as the first sentence. इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। जब मैं पेपर चेक करूंगी और आपने सबसे पहले ये चीज अगर डिक्लेयर की कि रेवेन्यू तो गलत बुक हो गया, वहीं पे इंप्रेशन खराब हो जाएगा। हमें फैसला पहले नहीं सुनाना है, पहले डिस्कशन करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद अ केस ब्रीफिंग, देन टेल कि कौन से स्टैंडर्ड से आप इसको अप्लाई करेंगे, कौन सा यहाँ पे इस केस में लगना चाहिए, फिर उस स्टैंडर्ड का कौन सा पोर्शन लगेगा और उसको फैक्ट्स ऑफ द केस से कनेक्ट करना है। और इसको कनेक्ट करके डिस्कशन करके आपने क्या कंक्लूजन निकाला वो एंड में आना चाहिए। ठीक है, ये लिख लिया, इसको नोट डाउन कर लो, सब अपने हाथ से लिखोगे, दिमाग में रिटेन रहेगा। डन? Yes, ma'am. ठीक है, I'll रिमूव दिस। बस ये तुम्हें लिखवाने के लिए आई हैड टू राइट दिस हियर। रिमूव कर दूं, आगे बढ़ जाऊं? चलो, ओके, नाउ आई स्टार्ट राइटिंग द आंसर। माय आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि कंसाइनमेंट अरेंजमेंट को हमें डील कैसे करना है। एज आई टोल्ड यू, प्लीज गिव द केस ब्रीफिंग फर्स्ट। केस ब्रीफिंग में मुझे क्या लेना है, यहां पे ये वाली लाइन ले कि कंसाइनमेंट बेसिस पे गार्डन सेंटर्स को रूबल को फर्नीचर भेजता था, where it was retaining the legal title to the furniture until the furniture was sold to the ultimate consumer. ठीक है, ये फर्स्ट टू लाइन्स आई विल यूज टू क्रिएट अ केस ब्रीफिंग। मोटा मोटा हो क्या रहा है वो लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे अपनी वर्ड्स में। रूबल को सेंस furniture to garden centers where the legal title in the furniture is retained by Rubal Co. till the time of sale of furniture to the ultimate customer. So I create sentences like this in the exam जहां पे केस ब्रीफिंग चाहिए। उसका रीजन ये होता है, जब आप यहां से उठा के लिखते हैं ना, मोर लाइकली आप कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो रूबल को ने क्या किया, फर्नीचर भेजा है। भेजा है किसको भेजा है, गार्डन सेंटर्स को भेजा है। लीगल टाइटल किसके हाथ में है, रूबल को के हाथ में। कब तक है, जब तक फर्नीचर सेल नहीं हो जाता। अब बच्चे कई बार यहीं पे छोड़ देते हैं, यू हैव टू सी दिस कि किसको सेल कर रहे हो, अल्टीमेट कस्टमर को। ठीक है, अब ये आदत आपको डालनी है, एक एक करके आपको हर चीज का क्लैरिफिकेशन देना है। रिटेन किया हुआ है लीगल टाइटल किसने, रूबल को ने। कब तक, एट द टाइम ऑफ सेल तक। किसकी सेल तक, फर्नीचर की सेल तक। सेल किसको करनी है, अल्टीमेट कंज्यूमर को करनी है। ठीक है, सो बी स्पेसिफिक टू व्हाट यू आर राइटिंग एज फार एज पॉसिबल।
क्या केस ब्रीफिंग यहां तक बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अब इसके बाद में हम चालू करते हैं डिस्कशन. नाउ यू ऑल गाइड मी हाउ दिस कंसाइनमेंट अरेंजमेंट शुड बी डेल्ट विद. आई हैव टू राइट फॉर 4 मार्क्स एटलीस्ट, यानी मुझे 8 to 10 लाइंस में इसका एक्सप्लेनेशन देना है. मेरे आंसर में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए. अब चलो ठीक है, आप लोग आंसर अभी नहीं लिखना आता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, उसको ध्यान रखना. यूज एवरी सेंटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन योर आंसर. इसको बड़ा बड़ा लिख लो कहीं. एवरी सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी यूज्ड इन योर आंसर. Some information will be relevant to you. Some information which is even not relevant, you need to tell the examiner that why it is not relevant. वापस बोल रही हूं, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूं. Every line of the question must be used by you in the answer. That means the whole paragraph must be used at one or the other places. Some information will be relevant for your answer building. Some information which is not relevant, you need to tell this to the examiner why this information is not considered relevant. Am I clear with this? एक एक सेंटेंस यूज करना है. ठीक है, अब मैं यूज करना चालू करती हूं. मुझे यहां से लेकर ऐसा लग रहा है यहां तक मुझे हेल्प कर रहा है कंसाइनमेंट का अरेंजमेंट डिसाइड करने में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसाइड करने में. उसके आगे वाला तो एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है. प्रोसीड्स कब रेमिट होंगी उसकी बात करता है. लास्ट सेंटेंस इसकी बात करता है कि सेल्स कब इंक्लूड कर ली रूबल ने. एटलीस्ट मुझे ये जो हाईलाइटेड मैटर है ये ऐसा लग रहा है कि ये कंसाइनमेंट अरेंजमेंट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि इन्हीं से मुझे इशारा मिल रहा है कि फाइनली किसके पास है कंट्रोल, मालिक कौन है इस फर्नीचर का. ठीक है, इसको कॉपी करो, लगाओ यहां पे. अब इस पे आंसर बिल्ड करना चालू करते हैं. द फर्स्ट थिंग, प्रोडक्ट्स आर इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल ऑन डिलीवरी टू द गार्डन सेंटर्स. ये लाइन मुझे रेलेवेंट नहीं लग रही, फिर भी आप अगर इस पे कुछ लिखना चाहें तो सिर्फ इतनी सी चीज डाल सकते हैं यहीं पे. टिल द टाइम ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, फर्नीचर being available for sale immediately when garden centers receive it. बस यूज कर ली वो वाली लाइन. नेक्स्ट, the garden center does not have any obligation to pay ruble co until a sale to a customer occurs. ये भी एक बार मुझे कंसाइनमेंट में कुछ यूज नहीं देती दिख रही है. इसको साइड में पार्क करती हूँ, इस सेंटेंस को. कहां काम आएगी देखते हैं, पर कहीं तो फिट करेंगे इसको. ये सेंटेंस काम आ रहा है. फिजिकल possession remains with the garden center unless the furniture is sold or returned to रूबल को. या तो रूबल को लौटाया जाएगा या फिर गार्डन सेंटर अपने पास रखेगा जब तक ये बिकेगा नहीं. और उसके आगे वाला सेंटेंस इसी को स्ट्रेंथन करता है. रूबल को ऑल्सो रिटेन्स द राइट टू हैव एनी अनसोल्ड फर्नीचर रिटर्न टू देम और टू ट्रांसफर अनसोल्ड प्रोडक्ट्स टू एनी अदर रिटेलर. ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इन तीनों को बिल्ड कैसे करेंगे वो देखते जाओ. Garden centers do not assume any liability towards Rubel Co. until furniture is so sold to the customer. It clearly evidences that the ownership in the furniture
किसके पास है? रूबल्को रूबल्को के पास. The ownership is with रूबल्को as garden centers do not owe any amount to it before the actual sale happens. तो सबसे पहली चीज मैंने ये प्रूव करने की कोशिश की है, जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर को फर्नीचर बिक नहीं जाता है तब तक रूबल्को को कुछ नहीं पे करना है. ये जो गार्डन सेंटर्स हैं दे विल नॉट पे एनीथिंग. ठीक है, आगे फर्दर रूबल्को still carry the right to get the unsold furniture returned or transferred a third party as per its will or requirement. will नहीं लिखते, requirement लिखते हैं. as per its requirement. This also confirms that रूबल्को has the ownership in the furniture sent to, किनको भेजा है ये? गार्डन सेंटर गार्डन सेंटर्स. मेरे लिए एग्जाम में ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता था, दोनों पार्टीज के नाम बार बार मेंशन करना. ये धीरे धीरे ना अपने ब्रेन को ट्रेन करना. मैं जैसे पढ़ाती हूँ ना, मैं वैसे ही वहां पे एग्जाम में टाइप करती थी कंसाइनर और कंसाइनी, लेकिन नाम लिखना. ठीक है, ये कंसाइनर कंसाइनी आदत अच्छी नहीं है. यहां तक ठीक है. हमने दो इंफॉर्मेशन यूज कर ली, बस एक रह गई है कि फिजिकल पोजेशन गार्डन सेंटर्स के पास तब तक ही रहेगा जब तक फर्नीचर या तो बिक नहीं जाएगा या फिर रूबल को रिटर्न नहीं कर दिया जाएगा. अब मैं इस वाले को यूज करती हूं. However, the point mentioned about the physical possession held by the garden centers until sale of furniture, sale or return of furniture, also add on to this fact that the transfer has not taken place to, क्या नाम है इसका फिर से, garden centers. They do not own this furniture. या फिर इसमें ये भी लिख सकते हो, they are holding the furniture ट्रांसफर या only. ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल. Transfer has not taken place to garden center. नहीं, transfer, normal transfer. When do we say that the customer has got the possession of the goods? When the title in the goods is transferred to the customer. वो वाला transfer है. You can say transfer of ownership. That's okay. ठीक है. ओके हाँ, मैं ये कह रही थी, यहाँ पे आप ये लाइन भी ऐड ऑन कर सकते हो. मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे, भूल गई मैं. The point mentioned about the physical possession held by garden centers until this also add on to this fact that the transfer has not taken place. हाँ, they means the garden centers accordingly cannot be said to own the furniture because they are just holding it as an agent until the sale happens. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है. गॉट इट? समझ गए?
garden centers cannot be said to have control of the furniture as they hold it till the time of sale or return as an agent only. Got it? Got it? Yes. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलो। हमने ये डिस्कशन तो कर दिया कि ये कंसाइनमेंट है, जो गार्डन सेंटर्स हैं वो मालिक इसके नहीं हो जाते, लेकिन अभी तक भी हमने कहीं पे ये नहीं बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा। नाउ आई वुड लाइक यू ऑल टू आंसर दिस कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करें। मैंने कल क्या बोला था? जर्नल एंट्रीज नहीं देनी है चल के, बस मुझे ये बताओ क्या रेवेन्यू इसमें रिकॉर्ड होगा, नंबर 1। नंबर 2, एज एन इन्वेंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा? बताओ बताओ बताओ। रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा इस पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड? No. नो। ठीक है, अकॉर्डिंगली नो रेवेन्यू मस्ट बी बुक्ड बाय रूबलको at the time of transfer of furniture to garden centers. ठीक है, फर्दर इन्वेंट्री का क्या करना है? इन्वेंट्री इन द कंसाइंड गुड्स किसके पास होनी चाहिए? इन्वेंट्री मस्ट बी हेल्ड बाय या मस्ट बी शोन बाय? कौन इसको रिकॉग्नाइज करेगा? रूबल को। रूबल को until the sale of furniture is made by garden centers. यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिए। नंबर 1, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होना। नंबर 2, इन्वेंट्री कौन मालिक रहेगा? इन्वेंट्री का रूबल कोई मालिक रहेगी कंसाइंड गुड्स की या गुड्स ऑन कंसाइनमेंट की। ठीक है, आप एक चीज और लिख सकते हो, लाइबिलिटी के बारे में कुछ कमेंट डाल सकते हो। क्या कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी यहां पे? क्या कोई लाइबिलिटी क्रिएट होनी है रूबल की बुक्स में? क्या कोई असेट क्रिएट होना है? क्या कोई इनकम बुक होनी है? क्या कोई खर्चा बुक होना है? नो, नो। एसेट तो नहीं बनेगा, लाइबिलिटी भी नहीं। लाइबिलिटी भी ऐसा नहीं बनेगी नवीन, क्योंकि देना तो किसी नहीं, को हाँ। कुछ है नहीं ना, हाँ जी। है ना। अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती गार्डन सेंटर की तो वहां पे हम डाल सकते थे कि अभी कोई लाइबिलिटी बुक नहीं करनी है टुवर्ड्स रूबल को, जब सामान बिकेगा तब बनेगी, अभी कुछ नहीं बनेगी। गॉट इट? गॉट इट? मैम तब भी नहीं बनेगी ना, वो नेट करके पैसे दे रहा है उसको। नेट करके देगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, लेकिन जब तक पैसे नहीं देगा तब तक लाइबिलिटी बना के रखेगा। ठीक है, अब देखो ये है ना आपका नॉर्मल जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, इट लुक्स लाइक दिस। लेट्स जस्ट हैव एन आइडिया कि हमने कितना लिख दिया 4 नंबर के लिए। इज इट सफिशिएंट? आई थिंक दैट्स फाइन, वरना पेपर छूट जाएगा। ठीक है, क्लियर? दिस मच इज फाइन। इससे कम लिखोगे तो आपको ये चीज पता लगनी चाहिए कि एग्जामिनर को मार्क्स एलोकेट करने में दिक्कत आएगी। अब आते हैं हम प्रोपोज ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू पे। Why the proposed treatment of revenue is not in accordance with IFRS 15? So one approach is, मैं इसकी यहां पे हेडिंग दे सकती हूं, which I personally like, treatment of consignment arrangement। ये तो मैंने यहां लिखा, अरे, और दूसरा proposed treatment of revenue, इसको मैंने यहां लिखा। लेकिन मैंने एक पैटर्न देखा है, इससे एग्जामिनर को बहुत आसान हो जाता है नंबर एलोकेट करना। एक दिक्कत ये आती है, बच्चे ये जो देते हैं ना, ये हेडिंग गलत दे देते हैं कई बार। तो तुम लोग एक काम ट्राई कर सकते हो, आपके पास 5 टेस्ट हैं, 3 में हेडिंग दे के देखो। अगर मैं बार बार कमेंट में ये लिख रही हूं कि तुम्हारी हेडिंग्स ठीक नहीं जा रही हैं, मतलब अंदर जो आप डिस्कस कर रहे हो उसकी रिप्रेजेंटेटिव हेडिंग नहीं है,
तो फिर मत लिखना। लेकिन अगर आप ये देते हो ना तो एग्जामिनर के लिए इजी हो जाता है डॉट्स कनेक्ट करना कि आपने कहाँ पे कौन सी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मीट करी है। वो फिर 1-to-1 केस बेसिस होगा, इसको हमें रूल की तरह नहीं फॉलो करना है कि सब हेडिंग दे देना। हो सकता है तुमसे हेडिंग नहीं बन रही हो तो तुम मत देना, मुझे गेज करने दो कि तुम्हें हेडिंग देनी है कि नहीं देनी है, तुम लोग एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, मैं सेकंड वाले पे आंसर करूंगी अबाउट द प्रोपोज्ड ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब प्रोपोज ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू पे बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ यूज करनी चाहिए। मेरे पास इंफॉर्मेशन ये रह गई है विच इज नॉट येट यूज्ड। एक बार मैं यहीं इसको लिख लेती हूं, बताओ। अब इसके ऊपर इज दिस ट्रीटमेंट करेक्ट और नॉट दैट वी हैव टू डिस्कस। क्या ट्रीटमेंट इसका, अब इसमें डिस्कशन क्या करें। First of all, we'll have to brief it up a little bit. हम्म, हाँ Maybe परफेक्ट, तो ब्रीफ करते हैं चलो। सो व्हाट इज दैट ब्रीफिंग। रूबल को includes the value of furniture delivered to garden centers as its revenue when the furniture is sent, ठीक है, या at the time of sending the furniture। गॉट इट। अब इसकी रीजन पे आते हैं या अब इसके डिस्कशन पे आते हैं। एज पर IFRS 15 पूरा नाम लिख देना उसका। आगे क्या डिस्कशन करें, सोचो सोचो सोचो। As it is a transaction between the consignor and a consignee who act as a principal as an agent, revenue must be recognized when the sale is ultimately made to the consumer। ये तो लिख ही सकते हैं ना, yes, ma'am. ठीक है। Yes, लिखो, चलो टाइप करो मेरे साथ साथ। एज पर IFRS 15, इसका पूरा नाम लिखना है यहाँ पे। रेवेन्यू इन केस ऑफ कंसाइनमेंट arrangements, revenue can be recognized when the ultimate sale to the customer takes place। इन केस ऑफ रूबल को, अब ये वाली लाइन यूज करने का टाइम आ गया है। एक वो वाली लाइन भी थी ना कि ये कुछ उस टाइम पे नहीं लाइबिलिटी, ओ सॉरी ये रही सॉरी, मुझे ये कॉपी करनी थी, वो गलत कर ली मैंने। इन केस ऑफ रूबल को गार्डन सेंटर्स no liability arises on the garden centers towards Rubal Co at the time of delivery of furniture। Instead, इसकी बजाय इस वर्ड को जरूर यूज करना, इंस्टेड। अब इस पे वो बात करते हैं कि ये लोग कब रेमिट करते हैं। ये इंस्टेड द गार्डन सेंटर्स remit payment to Rubal Co, payment of sale proceeds to Rubal Co after deducting their commission only when the furniture is sold to the customer। ठीक है, यहां तक एक बार रीड करके देख लो, ठीक लग रहा है ना इसका फ्लो। पहले हमने ये बताया IFRS 15 में रेवेन्यू कंसाइनमेंट अरेंजमेंट्स के अंडर तब रिकॉग्नाइज होता है जब अल्टीमेट सेल होती है कस्टमर को।
रूबल को के केस में भी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही है गार्डन सेंटर्स पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ फर्नीचर, बल्कि गार्डन सेंटर्स रेमिटेंस कब कर रहे हैं? व्हेन द फर्नीचर इज सोल्ड टू द कस्टमर। ठीक है, अकॉर्डिंगली अब मैं ये लिखने वाली हूं कि जो इन्होंने रेवेन्यू बुक किया है वो गलत है। अकॉर्डिंगली द रेवेन्यू बुक्ड बाय रूबल को इज इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट, ज्यादा अच्छा वर्ड है, is inconsistent with IFRS 15. Revenue in such a case must be booked only once the sale to the consumer has been made. Once the sale of furniture has been made to the customer. Bas, conclude and close. Now let me just resize the window and let's check क्या हमने ये 3 मार्क्स के हिसाब से ठीक लिखा है। क्या बोलते हो? Is it sufficient enough for 3 marks? Yes, ma'am. Seems like yes. ठीक है, बात समझ में आई? How will you structure the answer? Always case briefing first, then apply the accounting standard. Accounting standard बोलता क्या है पहले आप वो लिखेंगे, फिर आप उस केस से लिंक करके डिस्कशन करेंगे एंड लास्ट में आप उसका कंक्लूजन थ्रो करेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इन ऑल पी लेवल पेपर्स। मैं एएफएम में भी यही प्रैक्टिस कराती हूँ स्टूडेंट्स को, यहाँ पे भी यही होती है, एसबीएल में भी यही होती है। तो तुम आज यहाँ पे ये कर रहे हो, कल कोई और पेपर पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो हमेशा वहां पे भी यही फॉलो करना, लाइफ में भी यही फॉलो करना। इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना होता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। मूवीज भी देखोगे ना, उसमें भी ऐसा ही होता है। यू सी जॉली एलएलबी, द कोर्ट हियरिंग स्टार्ट्स विद फर्स्ट ब्रीफिंग द केस, की केस में हुआ क्या, उसके बाद में फैक्ट्स पे डिस्कशन होता है और एंड में क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। ये हर क्वालिफिकेशन में होता है, एवरी डिग्री डज दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई? बताओ। Yes. ठीक है, ये क्लियर है? ये वैसे तो स्क्रीन पे आ जाएगा। एंड इफ यू ऑल वांट, अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, प्लीज एलिमिनेट दिस। ठीक है, और मैं इसको करूंगी आंसर टू रिक्वायरमेंट ए। ये जो भी थी उसको चेक कर लेना। आंसर टू रिक्वायरमेंट ए, ऑलवेज मेंशन दिस प्लीज, दिस इज ऑलवेज अ गुड हैबिट टू शो लाइक दिस। मैं इसको कॉपी करके तुम्हारे व्हाट्सएप पे चिपका दूं, इफ यू ऑल वांट टू कॉपी दैट। Yes, ma'am. ठीक है, 1 मिनट रुकना फिर। अब इसी को कहाँ गया तुम्हारा ग्रुप? हाँ ये रहा। इसी को just consider this as a basis of writing answers for the upcoming questions. ठीक है, यहां तक डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लूं? मैम अगर है ना गार्डन सेंटर के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसा होगा, तो वो कैसे लिखेगा, मतलब ब्रीफ कर सकते हो? गार्डन यानी कि कंसाइनी। यस मैम, तो कंसाइनी की कंसाइनी अपन ने इसमें जैसे जो लास्ट क्लास में कंसाइनमेंट वाले में किया था, उसमें भी अपन ने क्या किया था? नंबर 1, इसको इन्वेंट्री की एंट्री बुक नहीं करनी चाहिए। मतलब इन्वेंट्री जो आया है आइडियल इसको बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसका मालिक ही नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री इसके नहीं दिखनी चाहिए। किसके में दिखेगी? रूबल के। दैट्स पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, गार्डन सेंटर्स क्या ये रेवेन्यू बुक करेंगे फॉर द फर्नीचर? नो, नो ये पेएबल बुक करेंगे। इनके लिए रेवेन्यू क्या होगा? कमीशन। कमीशन। बस यही लिखना है आपको। गार्डन सेंटर्स विल बुक कमीशन एज देयर रेवेन्यू। ऑन द अदर हैंड, द अमाउंट कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर विल बी रेमिटेड टू हुम? रूबल को। तो रूबल को की लाइबिलिटी क्रिएट होगी और उसको आप पेमेंट कर दोगे। अगर जनरल एंट्री में बताऊं, डेबिट कैश, क्रेडिट रूबल को, एंड डेबिट रूबल को, क्रेडिट कैश, आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आप वो पैसा रूबल को दे दोगे। और बीच में जो अमाउंट कैश का ज्यादा बचेगा, दैट अमाउंट विल रिप्रेजेंट योर कमीशन। जैसे मैं इसका एक रैंडम एग्जांपल लेती हूं।
एक मिनट, अमाउंट ना रैंडम ले लेती हूँ इसमें, क्योंकि इन लोगों ने अमाउंट्स बताए नहीं है। मैं इसका लेट सपोज एक लेती हूँ, $10,000 का फर्नीचर बेच दिया। गार्डन सेंटर्स इसको बुक करेंगे डेबिट कैश करके, $10,000 टोटल आ गए। क्रेडिट करेंगे अपना कमीशन, क्योंकि कमीशन तो इनकी इनकम है। लेट सपोज इनको इनकम अपनी बुक करनी है 1,000 की, बाकी बचा हुआ 9,000 किसको देना है? रूबल को। रूबल को। उसका 9,000 बुक कर दो। ये तो आपने अभी पेबल क्रिएट किया है बिकॉज द पेमेंट हैज नॉट येट बीन मेड टू रूबल। नाउ लेट सपोज रूबल को पेमेंट कर रहे हो। जर्नल एंट्री बताओ पेमा, ट्राई करो। रूबल को डेबिट टू कैश। परफेक्ट। रूबल को डेबिट कितना अमाउंट से? 9,000। 9,000 से। बस ये ध्यान रखना 10,000 से नहीं, उसको अपना कमीशन रखना है, तो वो लौटाएगा 9,000 ही, और क्रेडिट कर देगा कैश 9,000। ये जिस दिन सेटल होगा ना उस दिन करना है ये, लेकिन जिस दिन सेल ऑफ फर्नीचर होगी उस दिन ये वाली एंट्री बनेगी। तो दोनों की डेट्स अलग अलग है। गॉट इट?